Good morning students, class 10th, chapter 8, Introduction to Trigonometry. It is a very special chapter of this class. So to start the chapter, we study some basic. For this basic, firstly we study about triangle. And in the triangle, we discuss about right angle triangle. So for a right angle triangle, one angle is 90 degree. One angle is 90 degree and the side opposite to 90 degree is called hypotenuse. And remaining two sides are perpendicular and base. Perpendicular and base, it may be perpendicular, it may be perpendicular, it may be base or it may be base. It depend upon the question. And second thing of a right angle triangle, Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. So just note down it, and after this we study some basic of this triangle. Okay students, in a right angle triangle, if we given two sides, suppose its side is 4 centimeter and it is 3 centimeter. So what is the value of this side? Simply we can use a Pythagoras theorem and find out the value of this side. If in a triangle, two sides are in a right angle triangle, if two sides are given and we have to find out third side, then we can use Pythagoras theorem. अगर आपको हाइपोटेन्यूस निकालनी है तो भी पाइथागोरस थ्योरम. इफ हाइपोटेन्यूस एंड परपेंडिकुलर गिवन टू फाइंड आउट बेस, यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम. बट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ अ साइड इज गिवन एंड एंगल इज गिवन, then how can we find out remaining two sides? So for this we have to consider a word trigonometry. So what is the trigonometry? In the trigonometry we study the relationship between sides and angles of a right angle triangle. वैसे तो हम किसी भी ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हैं, बट इन द क्लास 10th वी यूज अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो ट्रिग्नोमेट्री इज अ branch of a mathematics in which we study relationship between side and angles of a triangle. Trigonometry is the word, पेज नंबर 174 पे आप देख भी सकते हो. द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज derived from the Greek word tri. ट्रिग्नोमेट्री, इसमें एक वर्ड आ रहा है ट्राई. ट्राई का मतलब होता है 3. नेक्स्ट है गोन. गोन का मतलब होता है साइड्स. एंड नेक्स्ट है आपका मेट्रोन. मेट्रोन मीन मेजर. तो ट्राइंगल की तीनों साइडों को फाइंड आउट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एंगल वी यूज द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. टू स्टडी द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री we use a word trigonometric ratio. So in this chapter we will study some ratios of side of a right angle triangle and their angles. It is called trigonometric ratios. So there are 6 trigonometric ratios we study, but for this we study some main point of a right angle triangle which we use in this chapter. In a right angle triangle, if we use this angle, then it is called perpendicular, base, and it is hypotenuse. And in a right angle triangle, if we use this angle, then it is called perpendicular, ये base, and it is hypotenuse. So आपको एक पॉइंट क्या याद रखना है कि जो साइड 90 डिग्री के सामने है वो तो ऑलवेज हाइपोटेन्यूस है. बट इन दिस चैप्टर हम जिस भी एंगल को स्टडी करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, या तो वो ये वाला एंगल होगा या ये वाला एंगल होगा,
तो उन दोनों में से जिस भी एंगल को स्टडी किया जाएगा उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कॉल करेंगे. इट इज़ अ मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. एंड देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करती हैं साइड और एंगल्स के बीच में रिलेशन. तो वे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं. सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन. साइन थीटा, इट इज कॉल्ड थीटा. थीटा रिप्रेजेंट एन एंगल. So sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. It is the first trigonometric ratio जो इस्तेमाल की जाती है राइट एंगल ट्रायंगल की साइड और एंगल्स के बीच में रिलेशन बताने के लिए. सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोस. कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. रिमेनिंग 3 रेशियोज cosec theta. Cosec theta, it is the reciprocal of sin theta, h upon p. Next, sec theta, it is the reciprocal of cos theta, hypotenuse upon base. And the last cot theta, reciprocal of tan theta, base upon perpendicular. These are 6 trigonometric ratios we use in this chapter, which represent the relationship between sides and angles of a right angle triangle. In the next classes we use any other triangle also, but in this class we use only a right angle triangle. To revise this formula we use a simple technique. For this technique we draw a rectangle and we divide a rectangle into 6 equal part, 1 2 3 4 5 6. And write here like a sentence, Pandit Badri Prasad har har bole. I again repeat, Pandit Badri Prasad har har bole, सोना चांदी तोले. तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा साइन थीटा का पी अपॉन एच, कोस थीटा का बी अपॉन एच, टेन थीटा का पी अपॉन बी. एंड वी नो दैट कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस एंड कोट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन. तो आप ये 6 फॉर्मूले इस तरह भी याद कर सकते हो. इनको याद करने की एक टेक्निक और है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे. व्हाट इज द टेक्निक? The first formula is sin theta is equal to P upon H. Second formula is cos theta is equal to B upon H. And third formula is tan theta is equal to P upon B. So to revise the formula we can use a technique. Some people have, again repeat, some people have curly brown hair turned permanently black. Some people have curly brown hair turned permanently black. और बाकी के 3 फार्मूले इनका रेसिप्रोकल है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनको हम यूज़ करेंगे इन चैप्टर में. नाउ कुछ लॉज हैं इसके, कुछ नियम हैं अपने. वो नियम क्या हैं? सपोज इट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा. We multiply sin theta multiply sin theta, so we can write sin theta whole square. Simply हम ऐसा करते हैं, एक नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई तो उसके ऊपर स्क्वायर. बट नाउ मेन पॉइंट, इन द ट्रिग्नोमेट्री वी रिप्रेजेंट स्क्वायर इन द अबव ऑफ साइन. यानी कि जो इंग्लिश का वर्ड है आप स्क्वायर उसके ऊपर शो करोगे. सपोज यहाँ पे टेन थीटा होता तो टेन स्क्वायर थीटा. अगर यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है इट्स मीन वो कंप्लीट वैल्यू पे स्क्वायर कंसीडर किया जाएगा. तो पहली बात तो आपको ये है, अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तो ये गलत होगा, इट्स अ रॉन्ग. आई होप यू अंडरस्टूड. एंड
नेक्स्ट लॉ इसका ये है साइन थीटा। साइन थीटा मीन साइन मल्टीप्लाई थीटा नहीं होता। मान लो आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो कि मैंने साइन थीटा लिखा है, साइन एक इंग्लिश का वर्ड हो गया, थीटा एक एंगल हो गया, तो इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम सिंपली एक्स वाई लिखते हैं तो हम इसे एक्स इंटू वाई कॉल करते हैं, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में है। लेकिन अगर 74 लिखा हुआ है तो हम उसे 7 मल्टीप्लाई 4 तो नहीं कॉल करते। तो बिल्कुल उसी तरह से साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस बनती है एंगल का यूज़ करने के बाद, तो आप उसे मल्टीप्लाई में ब्रेक नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इट इज़ अ बेसिक ऑफ चैप्टर नंबर 8 टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1। दिस आर मेन पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए। दो मेन पॉइंट मैं फिर से रिपीट करूँगा कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल जो भी एंगल हम स्टडी करेंगे, एक्यूट एंगल स्टडी करेंगे, हमेशा उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे। और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो फार्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए। ये इस चैप्टर की सबसे बेसिक है। आई होप यू अंडरस्टूड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1। थैंक यू वेरी मच।